आज हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और क्या आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So first question on your screen is the correct sequence of elements of a historical advertising model is. You have to identify what is the correct sequence. Yes, so the correct answer is D. It is the IDA model. The sequence is of IDA model, and the IDA model is given by Strong in 1925 and Elma Lewis in 1900, which says that the correct sequence of the model is first is creating attention, and then creating interest, finally desire, and then the final action. Okay, so the correct sequence is of IDA model. Okay, and the next question is the Directorate of Advertising and Visual Publicity is merged with which of the following? Okay, I'm getting variety of answers. So the correct answer is it's A, Bureau of Outreach and Communication. So basically in 2017, in the year 2017, the Information and Broadcasting Ministry merged the DAVP with DFP, that is Directorate of Field Publicity, as well as Song and Drama Division, and finally renamed it as Bureau of Outreach and Communication. So basically Bureau of Outreach and Communication जो है वो DAVP, DFP और Song and Drama Division का एक merged फैक्टर है, ठीक है, merged ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम कहें कॉम्बिनेशन है सबका, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मर्ज किया था ईयर 2017 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an advertisement draws attention to a brand through sensual communication, which of the following appeals is it making use of? I'm quite sure ये आंसर सबको पता होगा। No guys, whoever has mentioned B, it's wrong. The correct answer is C, it's provocation. Okay, सेंशुअल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि आप किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स को या फिर जो आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनको आप प्रोवोक कर रहे हैं उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्शन लाने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में सेंशुअल अपील करने का मतलब होता है कि दे आर यूजिंग प्रोवोकेशन और दे आर प्रोवोकिंग देयर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। ओके, so the next question is which of the following does not fall in the purview of ASCI's, that is Advertising Standard Council of India's Code of Self-Regulation for Advertisements? कौन सा इनमें से नहीं है जो कि ASCI के सेल्फ रेगुलेशन कोड के अंदर नहीं आता है, ठीक है। You have to mention the one which does not fall in the under the category of self-regulation of ASCI code. Just read all the options properly and then answer. Okay, majority of you are giving right answer. Okay, so the correct answer is it's A. Okay, यहाँ पर in 1985 the ASCI, that is Advertising Standard Council of India, adopted a code for self-regulation in advertising for ensuring the protection of consumer interest. उन्होंने कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये सेल्फ रेगुलेशन कोड दिया था, और साथ साथ जो भी एड इंडस्ट्री से लोग कनेक्टेड हैं, चाहे वो एडवर्टाइजर्स हो या एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो या जो भी लोग कनेक्टेड हैं उस इंडस्ट्री से, उन सबके लिए दिया गया था, ठीक है। तो वहां पर यू हैव टू बी ट्रूथफुल एंड फेयर टू कंज्यूमर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक डिसेंसी, मतलब कि आपको डिसेंसी और मोरालिटी को ध्यान में रख के आपको एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं, and not to be used indiscriminately for the promotion of product hazardous to society or individuals, ठीक है, but not to be used for cross promotion in a monopolistic market. क्रॉस प्रमोशन के लिए कोई भी ऐसा कोड नहीं दिया गया था या सेल्फ रेगुलेशन कोई एथिक्स नहीं दिया गया था, so it will not fall in under the purview of ASCI's code of self regulation, ठीक है। बाकी सारे जो है वो आपके कंज्यूमर इंटरेस्ट से रिलेटेड है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, so moving to the next question, the question says the single sheet advertisements printed on one side are known as what? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिंगल शीट एडवर्टीजमेंट्स जो कि एक साइड पे प्रिंट होते हैं उन्हें कहा जाता है?
think maximum people are giving the right answer. Those of you who are not giving, just please respond. Okay, so the correct answer is it's B, flyers. Okay, a flyer is a form of paper advertisement intended for wide distribution and typically posted or distributed in a public place, handed out to individuals or sent through mail. आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट्स जब आप रोड पे जाते रहते हैं तो आपको कई जगह के एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं हाथ में, पैम्पलेट्स टाइप के, ठीक है। वो जो पैम्पलेट्स होते हैं ना, उनको हम फ्लायर्स कहते हैं, ठीक है। या फिर सेम टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स जो ऑनलाइन फॉर्म में आपको दिखते हैं आपके मेल में, स्पैम के थ्रू आपको जो दिखता होगा, उन एडवर्टीजमेंट्स को जो हम फ्लायर कहते हैं, ठीक है। नहीं, इट इज जस्ट अ कंफ्यूजिंग ऑप्शन मनन, ओके। आपको इसलिए ऑप्शन में दिया गया था ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, बट द करेक्ट आंसर फॉर दैट इज फ्लायर, ठीक है, क्योंकि वही है जो कि सिंगल टाइप प्रिंट होता है, एक ही साइड में प्रिंट होता है, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, ओके। बिकॉज पोस्टर्स मे बी यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट एंड मे नॉट, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बट हर बार पोस्टर को एज एन एडवर्टीजमेंट ही पोर्ट्रे नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसलिए पोस्टर नहीं होगा। फ्लायर्स आर यूज्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक बीट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई एडवर्टीजमेंट के लिए एक क्विक फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन के लिए फ्लायर्स को यूज करते हैं, बट पोस्टर्स might not be used every time for the advertisement or communication. Okay, are you getting my point? चलिए ठीक है, so I'm switching to next question, and the question is, after determining its advertising objectives, a company has to set what for each? B A ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं। The correct answer is yes, it's B, advertising budget, ठीक है। तो जब हम मीडिया प्लान बनाते हैं, इट्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू मीडिया प्लान, जो हमने एडवर्टाइजिंग में पढ़ा था। जब हम मीडिया प्लान बनाते हैं तो पहले हमने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करके रखा है, उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग बजट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जब हमने सेट कर लिया तो वी विल प्लान अ बजट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। व्हाट इज कंफ्यूजिंग, शुभम? Please let me know. Obviously, if you are talking about the options may be confusing. That's why the options have been given. Okay, they might seem to be very similar. Okay, sometimes they'll be like very similar. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा उन दोनों में. It will be like 19, 20, 19, 20 का फर्क आता है. But you have to decide. You have to point to that particular option जो बिल्कुल आपको accurate लग रहा है. 100% जिस पे आप confirm है, आप उसी option के साथ जाएंगे. ठीक है? The next question is, the largest advertising agency of the world is? इनमें से कौन सा advertising agency सबसे largest advertising है global level पे? Any other option? Okay, I think very few of you have just given me the right answer. The correct answer is it's D, Macon Erickson Worldwide. ये एक American agency है और इसे 120 कंट्रीज में, इट इज ऑपरेटेड इन टोटल 120 कंट्रीज, एंड सो इट इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिमेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर केप्ट इन व्हाट? ओके, सी, डी, बी, ए। करेक्ट आंसर है आपका डी, द गार्ड बुक। ठीक है, गार्ड बुक क्या होता है? द गार्ड बुक इज अ क्रॉनिकलर ऑफ ऑल द की वर्क्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ ब्रांड and a score of PowerPoint presentations on key strategies and achievements maintained by the agency. ठीक है, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक बुक है, एक रजिस्टर है that contains all the key works or important works of advertisements on a brand and a combination or a collection of PowerPoint presentations on key strategies and achievements maintained by the agency. ठीक है, गार्ड बुक में आपके जितने भी एडवर्टीजमेंट्स से रिलेटेड जो भी काम है किसी एक ब्रांड के, हर ब्रांड जो होता है या हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपना एक गार्ड बुक रखता है। ठीक है, उसमें उससे रिलेटेड जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आए हुए हैं उन सब का कलेक्शन जो होता है उस गार्ड बुक में रखा होता है। इट इज जस्ट टू मेंटेन अ रिकॉर्ड। ठीक है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एक आर्काइव के लिए जो है, एक कलेक्शन के लिए वो मेंटेन किया जाता है एजेंसी के द्वारा। ठीक है, next question is assertion reason. So the assertion says that news photographs and magazine advertisements are mostly indexical and always iconic in nature. And the reason says the categorization is mostly arbitrary and insignificant in meaning production.
Just identify which of them are true. Try give the answers, okay? Try giving the answers everyone, क्योंकि आप कुछ भी आंसर दें, किसी भी तरह का आंसर दें आप, whether it is right or wrong, at least try to attempt that question, okay? You should have an idea of how the questions are and what you are analyzing. Okay. So the correct answer is it's C. Assertion is true, but reason is false. Okay. Do I need to explain this or is it clear? Yeah, इंडेक्सिकल मैं आपको बता देती हूँ शुभम. इंडेक्सिकल होता है बेसिकली इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं ना, कि आप एक फॉर्मेट या फिर एक पूरा कंटेंट आप दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंडेक्सिकल कहते हैं. ठीक है, इंडेक्स की फॉर्म में किसी चीज को दिखाना, सीक्वेंस में, सीरीज में. व्हाट शुड आई एक्सप्लेन शर्मिला? इज इट द वर्ड और द होल क्वेश्चन? Index, okay. Index is basically, you must have seen in an magazine advertisement or sorry, magazine or maybe any book. Index आपको दिखाई देता होगा. You must have seen the index, the contents part, where everything is presented in a sequence, in a series, that what will come first and what will come next, and then at the last. Okay, so that is basically indexical or index, showing in the form of a index, in the form of a series. Okay, is it clear? Okay, take care. So moving forward to the next question. The next question is, more white space on a printed page can be gained by reducing the number of what? How can you gain white space on a printed page? Perfect. Everyone has given the right answer except a few. So the answer is B. It is columns. ठीक है, आप जितना ज्यादा columns को reduce करेंगे, the more and more you will reduce the columns, the number of columns, you will gain more white space on a printed page. Okay. And what is white space? So white space is the empty space or the negative space that exists around all the content in a design layout. ठीक है, whenever you design a newspaper or a magazine, you must have seen the white space. The empty space that is there in the newspaper, it is called the white space. ठीक है, columns के बीच में जो भी space होता है. Okay. So this was about white space, and the next question we are getting is, response of readers to a published advertisement results in what? Shubham is saying that it can be preference, but most suitable is A. So the correct answer is it's C, pulling power. आप लोगों ने बिल्कुल भी expect नहीं किया होगा ये answer, and but the correct answer is C. Pulling power क्या होता है? Pulling power is the ability of an advertisement to sell a product or service or to evoke a response from readers. ठीक है, आप किस तरह से किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, या फिर किस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट को बेच रहे हैं, कितना ज्यादा इवोक कर रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं, और उससे रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसको हम पुलिंग पावर कहते हैं. ठीक है, कि कितना कितना ज्यादा आप, हाउ मच यू कैन पुल योर कंज्यूमर्स और कस्टमर्स थ्रू योर एडवर्टीजमेंट. ओके, इट इज कॉल्ड पुलिंग पावर. परचेजिंग पावर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज परचेजिंग पावर और पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट या रीडर्स का रिस्पॉन्स कोई कनेक्शन ही नहीं है. ठीक है, आपको एक बार प्रमोशन पावर लग सकता था, पुलिंग पावर हो सकता था, बट परचेजिंग पावर कभी नहीं होगा. ओके, so the correct answer is C, pulling power. Okay, clear? I know they are shedding the result in purchasing, but यहाँ पर बात उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो रही है. ठीक है, कि साइकोलॉजिकली जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उन पे, परचेज से रिलेटेड नहीं, उनका रिस्पॉन्स, कि हाउ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एडवर्टीजमेंट, इस बारे में बात हो रही है. ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ रीडर्स, यहाँ पर परचेज के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं है. इट इज ऑल अबाउट लाइक whether you are getting attracted towards an advertisement or not, only then you will be going towards the purchase, right? जब हमने आइडा मॉडल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वहां पर पहले अटेंशन क्रिएट हो रहा है, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर, एंड देन फाइनली एक्शन. तो जब तक आपका अटेंशन, इंटरेस्ट और डिजायर नहीं क्रिएट होगा, तब तक आपका परचेज कहाँ पर होगा. ठीक है, तो ये पुलिंग पावर जो है वो आपका अटेंशन, इंटरेस्ट और डिजायर से कंबाइंड है. ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना. ये तो जाहिर सी बात है ना कि आपको वहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि किस बारे में बात हो रही है. ठीक है,
अगर एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और हम एक मॉडल पढ़ चुके हैं, जिस मॉडल में हमने ये देखा है कि वहां पर पहले हम एक सीरीज के थ्रू जो है, कोई भी कस्टमर एक सीरीज के थ्रू परचेज के तरफ जाता है, ठीक है, पहले उसका अटेंशन क्रिएट होना चाहिए, फिर वो इंटरेस्ट उसके अंदर आएगा, तब तो वो परचेज करेगा ना, डायरेक्ट परचेज तो होता नहीं है अकॉर्डिंग टू द मॉडल एंड थ्योरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो जब हम उस बारे में बात कर रहे हैं, हमने वो पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली हम पहले ये देखेंगे कि कितना ज्यादा कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट का पहला जो मोटिव है वो है किसी भी कस्टमर को अर्ज करना, उसके अंदर अर्ज क्रिएट करना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ओनली देन द फाइनल एक्शन विल बी परचेज, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक लाइक दैट in terms of attraction or in terms of creating interest. Okay, I hope I'm clear. See guys, the point is that कि आप लोग UGC नेट के स्टूडेंट्स हैं and you have to apply a bit of your mind. Okay, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल परोस दिया जाएगा और आपको उसका आंसर देना है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग एन एग्जाम। हाँ, कंपटीशन जब इतना हाई है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग द एग्जाम अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, यू हैव टू थिंक एनालिटिकली। ओके, क्वेश्चन का फॉर्मेट डायरेक्ट है बट क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है वो डायरेक्ट नहीं है, एंड दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू द क्वेश्चंस that have come already in the exams. Okay, so I'm not just playing games with you, don't think like that. Okay, okay, so switching to the next question, it says that which newspaper carried an advertisement in 1875 announcing presentation of farce named Lamentations of Bharat Mata with her children? Which of the following newspaper is the correct answer? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट्स सी अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। इस न्यूज़पेपर में 1875 में ये एडवर्टीजमेंट देखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेट ऑफ डिक्लाइन इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट्स इज कॉल्ड। किसी एडवर्टीजमेंट में रेट ऑफ डिक्लाइन अगर देखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? या ऑब्वियसली इट्स करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, रिस्पॉन्स डीके, ठीक है, रिस्पॉन्स डीके इसका सही जवाब है। एंड व्हाट डज इट मीन? द डीके ऑफ एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स मींस द फेडिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ एन एड एंड लैक ऑफ कंटिन्यूड रिस्पॉन्स टू इट। किस तरह से आप एडवर्टीजमेंट को भूलते जाते हैं, ठीक है, उस भूलना या उस फेड करना, उस मेमोरी को फेड करने को हम कहते हैं रिस्पॉन्स डीके। वो आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, यू विल गेट इन एनी ऑफ द वेबसाइट, यू विल जस्ट फाइंड इट इन गूगल that what are the terminologies related to advertising, or maybe I'll make a collection of it, all the terminologies related to advertising, and then I'll give it to you. Okay, ठीक है, you just don't need to worry about that, I'll provide you with all the terminologies. ठीक है, next question is publishing or telecasting controversial advertisements is a, okay, A, B, and I hope this is not a tough question for you. Okay, so the correct answer is इट्स ए पीआर टैक्टिक, ठीक है। पीआर टैक्टिक में जो है कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कभी कभी दिया जाता है जस्ट टू क्रिएट द पब्लिसिटी, ठीक है, पब्लिसिटी इंसाइट करने के लिए कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट्स का यूज किया जाता है, एंड इट इज प्योरली अ पीआर टैक्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम एडवर्टीजमेंट्स नॉर्मली कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा थीम एडवर्टीजमेंट्स में होता है? ओके, बी, ए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना और उसको लिंक करेंगे क्वेश्चन से, तो आपको ऑटोमेटिकली सही आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको क्लिक करेगा तुरंत ही। The one who have understood the concept of the topic, they might be able to answer correctly, and they are actually. So the correct answer for this question is it's B, emotional appeal, ठीक है। इमोशनल अपील जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स में यूज किया जाता है उनको हम थीम एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं, और बेसिकली एक मैसेज दिया जाता है उन एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। जिस भी एडवर्टीजमेंट में एक पर्टिकुलर मैसेज कुछ दिया जा रहा है या किसी तरह से कनेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, उनको हम थीम एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं, एंड दे नॉर्मली कंटेन इमोशनल अपील। तो मगर जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर एसबीआई का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि दे आर the advertisements that are generated by the SBI banks, they bring out the touching and appealing ad for customers, ठीक है। LIC के एड्स हो जाते हैं, यस एग्जैक्टली सुमित। और उसके अलावा आपने टूरिज्म का देखा होगा, स्टेट टूरिज्म के जो भी एड्स होते हैं
उनको वो कैसे वो अपने कस्टमर से या फिर जो उनके टारगेट ऑडियंस है उनसे वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इमोशनल अपील उसमें जो है डाल रहे हैं, वो आपका जो है थीम एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ रीडर्स हु कैन रिकॉल ऑफ सीइंग एडवर्टीजमेंट इज रेफर टू एज व्हाट? ओके, वेरी क्विक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नोटिंग स्कोर, ठीक है। नोटिंग स्कोर जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्या होता है नोटिंग स्कोर? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ रीडर्स नोटिंग अ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रीडरशिप, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को कितने लोग रीड कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे हम नोटिंग स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रीडरशिप। ओके, ये मैं टर्मिनोलॉजीज जब आपको दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो अभी आप पैनिक मत होइएगा, ठीक है। जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। नोटिंग स्कोर समझ में आ गया सबको? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, when colors in an advertisement are not harmonious, it is identified as, okay Pooja, the answer for that question is Amrit Bazar Patrika. Okay, got it? ठीक है, so the correct answer for this question is it's D, आउट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। आउट ऑफ रजिस्टर तब होता है जब एक एडवर्टीजमेंट में कलर्स जो है वो अलाइंड तरीके से नहीं होते हैं, या फिर एक हार्मनी में नहीं होते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में नहीं होते हैं, बहुत कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है कलर्स के बीच का, ठीक है। और सबको पता है कि एडवर्टीजमेंट में कलर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो इट इज आउट ऑफ रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to identify a brand in a series of advertisements, what is used? Most of you are going with D, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका, इट्स ए, प्री हेड्स, ठीक है। प्री हेड्स जो होते हैं उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी एडवर्टीजमेंट के एक सीरीज में एक ब्रांड को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अभी हमने एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चंस देखे, इसमें हम मार्केटिंग हमने भी पढ़ा था इस यूनिट में, तो अब मार्केटिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। जस्ट टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज डी, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। In marketing communication, the brands speak and listen to their audience, responding to their wants and needs. ठीक है, जब हमने मार्केटिंग पढ़ा था तो we read about the identification of wants and needs. The first step towards marketing is identification of wants and needs. वहां से उनको ये पता चल रहा है कि कस्टमर की नीड क्या है, and then they are working on that. Finally, the advertisement is created, and for that advertisement, the feedback is again taken from the consumers or the customers. ठीक है, तो ये एक तरह का टू वे कम्युनिकेशन है जहां पर फीडबैक भी है और आपका आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपका फेवरेट असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ चुका है। Assertion says that the impact of paid sales message is an additional worry for marketing communicators. Okay, और रीजन कहता है कि the increased commercial contents in mass media make the audience tune them out because of their noise level. तो कौन सा सही और कौन सा गलत है? यस, दोनों सही हैं। ओके, सॉरी मैंने आंसर पहले ही दे दिया है, ए। बोथ assertion and reason are true. ओके, so next question पे move करते हैं। Why additional worry? Actually the assertion is saying that paid sales message जिनको हम advertisement कहेंगे, तो एडवर्टीजमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो मार्केटिंग कम्युनिकेटर्स के लिए एडिशनल वरी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने इन्वेस्ट करके रखा है उस पर्टिकुलर मैसेज में, ठीक है, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका लोगों का उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, व्हाट इम्पैक्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू make a concern that whether that product or service will be purchased or not, because ultimately the motive will be that whether the customer is purchasing that particular product or not based on the advertisement created.
Okay, so the impact of that particular advertisement or paid sales message is, that's why it is an additional worry, because you have to uh, keep both the things in mind, that they are getting impacted with it positively or not, or whether they are purchasing it or not. Okay. Okay, I hope I'm clear. Any doubt in this question, or should I move further? So the next question is, hierarchy of effects model is a theory related to which of these? Okay, most of you are giving the right answer. Okay, ठीक है. So the correct answer for this question is, it's A, social marketing. Okay. Hierarchy of effects theory is a model of how advertising influences a consumer's decision to purchase or non-purchase a product service. It's almost similar to word of mouth advertising. Okay. So basically, whenever you are taking a feedback from a customer or a consumer, and then you are making your decision based on that feedback. So that is all about what hierarchy of effects model theory says. Okay. Sri Lakshmi, I'm not getting your point. What you are trying to say? Okay. Okay, so I'm switching to next question. The question says, which of the following determines whether a certain media combination provides the greatest reach and frequency for the product or service? Okay, I got your point. Okay. Okay, so the correct answer for this question is B. It's B, synergistic marketing. ठीक है, synergistic marketing क्या होता है? Synergy word से synergistic आया है. Synergy मतलब कि आप किस तरह से दो चीजों को combine करते हैं. ठीक है, एक synergy create कर रहे हैं, combination create कर रहे हैं. So the principle in marketing that the whole is greater than the sum of the parts. Putting the marketing mix variables together to achieve maximum reach and frequency is what is all about the synergistic marketing या synergy in marketing. ठीक है, तो किस तरह से आप दो चीजों को, दो वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करते हैं सो दैट यू कैन अचीव द मैक्सिमम रीच एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a function of marketing services department of an ad agency? Aditi, you just have to give one answer. You cannot create a confusion here. Obviously, you will have to choose one. Okay, ठीक है. The correct answer for this question is, it's C, back end operations. ठीक है, back end operations. बैक एंड ऑपरेशंस क्या होता है कि वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको आप देख नहीं पा रही है, जिनको कस्टमर्स जो है देख नहीं पाते हैं. वो आपके जो भी हिडन एक्टिविटीज है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज हेल्पिंग यू टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, इट इज कॉल्ड बैक एंड ऑपरेशन. ठीक है, तो मार्केटिंग की जब भी हम बात करेंगे तो मार्केटिंग सर्विसेज में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वही आपके सामने है. ठीक है, देयर इज नथिंग हिडन देयर. इसलिए बैक एंड ऑपरेशंस जो होगा वो मार्केटिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है. या आदित्य, आपका कंफ्यूजन भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, यू जस्ट गॉट द करेक्ट आंसर. आई होप यू आर क्लियर विद दिस आंसर, राइट? नहीं, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम पूरी तरह प्रमोशन की बात करेंगे, और प्रमोशन में सिर्फ वही हमें दिखाई देता है जिस तरह से हमारे सामने जो भी कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो यहाँ पर कस्टमर की बात आती है, कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में या पर्सपेक्टिव में. ठीक है, तो वहां पर जो है बैक एंड ऑपरेशन जो भी होगा वो मार्केटिंग सर्विसेज का आपका पार्ट नहीं होगा, वो एक दैट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट और सेपरेट वर्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन. Product advertising over a small area without damaging national investment is known as. So the correct answer for this question is, it's D, test marketing. ठीक है, टेस्ट मार्केटिंग होता है एक तरह का स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जहां पर आप एक न्यू प्रोडक्ट के बेनिफिट को या फिर उसकी कितनी रीच है उसको आप चेक करते हैं. ठीक है, इसको आप एक तरह से मार्केटिंग कैंपेन भी कह सकते हैं. यू कैन कॉल इट अ मार्केटिंग कैंपेन which is launched in the market before it is launched in the market on a large scale. ठीक है, so it is just presented to check the viability of a new product. Okay, how much beneficial that product is or how much it is accessible to the customers, in order to check that the product the test marketing is done. Okay, I'm not actually a bit clear about the pilot advertising, so I'll not be able to say that. Okay, but the correct answer for this question is D, test marketing. I'll give you the terminology of all the advertising related concepts and terms. उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है,
You'll be able to identify things and differentiate also. Okay, so that was all the question answer related to the advertising unit. और यहाँ पर फाइनली हमारा एडवर्टाइजिंग यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है एंड देन कल से हम पब्लिक रिलेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू.